the arrests of Al-Qaeda operatives, alleged Al-Qaeda operatives. Yogi Adityanath and his government says that this is significant because they were planning something big. They were planning attacks in Ayodhya. That's what the police says. Both the BSP and the SP say that they don't trust the government. So Akhilesh Yadav says, I don't trust the BJP's police. And Mayawati says, why is it coming so close to elections? The big question that we are asking is, who is playing politics? You know, common wisdom is that everyone's playing politics over an issue of national security. I would like to ask you, Ghanshyam Tiwari, what was the need, why was the need felt, Mr. Tiwari, for an Akhilesh Yadav to say that he doesn't trust the police? Because as of this moment, we are still waiting for the investigation to be completed. It's preliminary. So for you to not trust, could you be in a better position to tell us why don't you trust the police? Well, 2 days back and a week back, Uttar Pradesh saw one of its darkest chapters of kidnapping of democratic voice. महिलाओं का चीरहरण हुआ, एसपी की आवाज आई कि उनको थप्पड़ मारा गया. No, what's that got to do with this arrest? I'll tell you. When the entire state, district after district was burning, महिलाओं का चीरहरण हो रहा था. भारतीय जनता पार्टी के नेता बीजेपी बम, हथगोले, लाठी डंडे, बंदूक लेके घूम रहे थे. एसपी पे थप्पड़ मारा जा रहा था. देश के प्रधानमंत्री किसी राष्ट्र की तरह आदित्यनाथ को शांतिपूर्ण चुनाव की बधाई दे रहे थे और आदित्यनाथ लड्डू खा रहे थे कि शांतिपूर्ण चुनाव हुए. ये इनका ढोंग है, जहां पर एक व्यक्ति जिसके स्वयं के एफिडेविट में इतने आपराधिक मुकदमों का जिक्र है जितना मेरे आपके पास मार्कशीट नहीं होगा, उसे ये लोग कहते हैं ये योगी है. फिर ये लोग हाथरस की घटना होती है, फिर तमाम घटनाएं. Mr. Tiwari, what does this have to do with you calling the arrest of the alleged Al-Qaeda operatives and not trusting it? Well, I'm trying to understand the link, and then I'll ask my question. A government did not see people dying, denied oxygen and beds, denied oxygen, right? This government has not told truth any time. What about believing them? Saying that this is not the truth. In this 4.5 years that you are supposed to believe them. Take out from their dustbin the 2017 Sankalp Patra of BJP. They have written 32 pages in it. Is a single page believable? This government and its police will do nothing that is believable. They are only built on propaganda, be it their policy. Okay, जाटव जी, इससे पहले मैं आपके पास आऊं, डॉक्टर खान, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि कुछ ऐसा ही आरोप बीएसपी की चीफ मायावती ने भी लगाया है. She is saying why does all of this happen so close to the elections? I mean, do you have some intelligence? आपके पास कोई जानकारी है, विशेष जानकारी जिसके तहत आप ये बोल रहे हैं, या ये एक राजनीतिक आरोप आपने लगाया? नहीं, राजनीतिक आरोप बिल्कुल नहीं है. बहन जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है. देखिए, मैं आप संकेत जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको खुद समझना चाहिए कि अल-कायदा कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है. ये इंटरनेशनल लेवल का अल-कायदा संगठन है जो कि लोगों की हत्याएं करना, लोगों को किडनैप करना, ये सब काम करता है. मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस या जो थाना है जिसमें वो थाने वाले जो है इन्फॉर्मर रखते हैं, अपने इन्फॉर्मर रखते हैं. इन्फॉर्मर आके बताता है कि फला जगह जुआ का अड्डा चल रहा है, फला जगह जो है शराब पी जा रही है, फला जगह गलत काम हो रहा है. इन्फॉर्मर ने नहीं बताया इन जिहादियों का, अगर मान लीजिए वो जिहादी है और वो आतंकी हैं, तो उनके 2 मंजिला मकान बन गए, उनके कारखाने चलने लगे. अभी तक पुलिस के कान में जूं क्यों नहीं रेंगी थी? एकदम से कैसे याद आ गया कि फटाफट करने लगे. दूसरी बात ये कि पुलिस कह रही है कि जब हमने एक आदमी को पकड़ा ऊपर, तो देखा कि ऊपर जहां पर खड़ा था वो सारे कागजों को जला दिया था उसने. सारे जितने कागज थे, जो भी पकड़े जाते कागज में जिसमें वो पकड़ा जा सकता था, उन कागजों को जला दिया. अब एडीजी कह रहे हैं कि वो उसके पास से बरामद हुआ है राम मंदिर का नक्शा. एडीजी कह रहे हैं कि उसके बनारस का नक्शा बरामद हुआ. ये सब चीजें कहां से आ रही है? ये सब बनावटी लगती नहीं. आपका जवाब. You have heard what the SP has to say, BSP has to say. देखिए, दोनों के बीएसपी और एसपी का दोनों का वर्जन अगर आप ध्यान से देखें, सुने, तो इन्होंने तो क्लीन चिट दे दी है अलकायदा के आतंकवादियों को, और अब तो आवश्यकता है ही नहीं उनकी जांच करने की. इतना क्लियर इन्होंने इस वक्त दे दिया है. अरे कम से कम जांच होने दें. जिनको अरेस्ट किया गया है वो किसी न किसी
मतलब एक बहुत बड़ा महकमा है, वो पूरी जांच के बाद में पूरा कॉन्फिडेंट होने के बाद में ही अरेस्ट करता है, वो एकदम जाकर के गला नहीं पकड़ता। तो इस वक्त में जिस तरीके से वो जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनकी जांच होने की आवश्यकता है, और ये टेररिस्ट पॉलिटिक्स जो है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी इससे बचे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं समाज को गुमराह कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को आप गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि अलकायदा के ये टेररिस्टों को पनाह दे करके या उनके बारे में सॉफ्ट बात करके आप मुस्लिम समाज का वोट ले लेंगे। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान का मुस्लिम जागरूक है, और कोई भी आतंकवादी, what about the question of Dr. Khan? किसी भी सूरत में What about Dr. Khan's उसका question पैरोकार where he नहीं हो said that सकता। where were the informers all this while? ये इतने दिनों से बैठे रहे यहाँ पर, आपको जानकारी नहीं मिली? देखिए, जब ठोस सबूत आ जाते हैं उसके बाद ही कार्रवाई की जाती है, और कोई कार्रवाई उन लोगों के द्वारा हो उससे पहले वो लोग अरेस्ट हुए हैं, सबकी निगाह में है। इसमें हमें खुश होना चाहिए, पुलिस को भी हमें तारीफ करनी चाहिए कि उन लोगों ने जो है कोई हरकत होने से पहले उनको अरेस्ट किया। This assumption that you will speak in favor of these alleged terrorists is going to fetch you votes from the Muslim community is a false proposition. How would you respond? Well, a party that made Sadhvi Pragya a candidate for Lok Sabha, a party that has systematically dismantled the NIA formidability in tackling crime of national security, crime against national security, is not a party that can preach. At their will, at the drop of the hat, they can call you a terrorist, call me a terrorist, call Mr. Khan a terrorist, and tell Sadhvi Pragya is the greatest patriot ever born. A party that believes in the foundations of thought process of Godse will never provide national security. Yeah, they can only provide national disharmony. That is their agenda. You will see. One by one. Mr. Jadhav, please, one moment. वो अपराधी घोषित हुई क्या? वो आतंकवादी घोषित हुई? One moment. Mr. Tiwari. जनता जानती है क्या घोषित हुई क्या नहीं हुई। आपके एमएलए बम लेके घूमते रहे, एसपी कहता रहा, आपने पकड़ा उसे? आपने नहीं पकड़ा। तो आप लोग किसे पकड़ेंगे, किसे नहीं पकड़ेंगे उसे छोड़िए। हिंदू वोट के साथ मुख्य मुद्दा ये है कि ये मैं उत्तर प्रदेश की जनता को Very आगाह quickly, करना Dr. Khan's comment also. Dr. Khan, you've heard what Mr. Jadhav had to say. उनका ये कहना है कि ये assumption, ये assume कर लेना कि अगर आप तथाकथित आतंकवादियों के बारे में अगर बात करेंगे या हमदर्दी जताएंगे तो उससे आपको चुनाव में लाभ हो जाएगा, ये बहुत ही गलत धारणा है मुसलमानों के प्रति। नहीं, ये गलत इन्होंने बात कही, मुसलमानों के प्रति नहीं है। देखिए, ये जो आतंकी संगठन है ये इतना बड़ा नाम है कि उत्तर प्रदेश की एक एक जनता, हिंदू मुसलमान सब डरे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर जहां मुख्यमंत्री बैठा है, जहां पूरी सरकार बैठी है, वहां किस तरह से ये आतंकवादी आ गए। अब अगर लखनऊ में आ गए तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता डरी हुई है, सहमी हुई है। आप इस चीज में जनता को कहें और मैं कि उनको खुश होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी के लॉ ने यहाँ के सख्त जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उन आतंकवादी को पकड़ लिया। आप जनता को ये समझाए ना। No, okay, I've run out of time. Thank you very much to three of you. The point is that पकड़े गए हैं, घटना घटित होने से पहले जो है ना वो अपराधी। Thank you very much, Mr. Jadhav, Dr. Khan, as well as Mr. Tiwari. The point is that this is a very, very serious issue. Alleged terrorists have been caught who have been, the police says that they've been affiliated, an affiliation has been found with Al-Qaeda. This is serious. And let us just hope that the investigation reveals that this is the truth and that there is no politics. Good night and goodbye.